ગુજરાત 18 લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। નજર કરીએ સમાચાર પર। વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ત્રીજા રોજગાર મેળાનું ઉદ્ઘાટન કરતા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ રોજગાર મેળાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જેમાં વડોદરામાં રેલવે મંત્રી દર્શના જરદોશના હસ્તે ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ત્રીજા રોજગાર મેળાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જેમાં દેશભરમાંથી 71,000 ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। શરૂઆતમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશના વિવિધ રાજ્યોના ઉમેદવારો સાથે વાતચીત કરી હતી અને તમામને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી। રોજગાર મેળાના ઉદ્ઘાટન અંતર્ગત વડોદરાના FGI ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઓડિટોરિયમ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં રેલવે મંત્રી દર્શના જરદોશ, વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક બાલકૃષ્ણભાઈ શુક્લ, GSTના પ્રિન્સિપાલ સેક્રેટરી અજયકુમાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને GST, ઇન્કમ ટેક્સ, રેલવે, ટેક્સટાઇલ, નર્સિંગ સહિતના વિભાગો માટે વિવિધ રાજ્યોમાંથી પસંદગી પામેલા 126 ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। દર્શના જરદોશે બુલેટ ટ્રેન અંગે કહ્યું કે દેશમાં સૌથી વધુ રાજનીતિ થઈ, પરંતુ ગુજરાતની ડબલ એન્જિન સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર મળીને જલ્દીથી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરશે। મારા સાથી સાંસદ રંજનબેન, આપણા દંડક શ્રી બાળુભાઈ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, મેયરશ્રી અને એની હાજરીમાં વડોદરાની અંદર જુદા જુદા વિભાગના નિમણૂક પત્રનો કાર્યક્રમ આજે સરકારનો યોજવામાં આવ્યો હતો। ખાસ કરીને GST વિભાગ દ્વારા જે ઇન્કમ ટેક્સની અંદર જે લોકોની નિયુક્ત થઈ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના જે એક્ઝામ આપ્યા પછીની, એની સાથે રેલવે વિભાગ, શ્રમ વિભાગ, સ્ટેટિસ્ટિક વિભાગ, જુદા જુદા વિભાગોની અંદર આજે નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા। દેશની અંદર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર 71,474 જેટલી નોકરીઓના આજે બીજા ચરણનો આરંભ થયો। જ્યારે ધનતેરસના દિવસે સૌ પ્રથમ વખત પ્રધાનમંત્રીજીએ 10 લાખ નોકરીઓ યુવાનોને આપીને જોડવાના માટેનો જે શુભારંભ કર્યો હતો, એનો આજે બીજો ચરણ થયો। એની સાથે સાથે નવેમ્બર મહિનામાં એક કર્મયોગી પોર્ટલનું પણ એમણે લોન્ચિંગ કર્યું હતું, જેના દ્વારા કર્મયોગી જે જોડાયેલા સરકારી સેવામાં જોડાયેલા લોકો પોતે એના દ્વારા એક્ઝામ આપીને પોતાની જાતને અપગ્રેડ કરીને સરકારની સેવામાં કેવી રીતે પોતે સારી રીતે પોતાનું પરફોર્મ કરી શકે, એના માટેના અનુભવો પણ એમણે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના જે કર્મયોગીઓ હતા એની સાથે પોતે વાતો કરી, ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું, પોતાના વિચારો આપ્યા કે આઝાદીના અમૃતકાળની અંદર જ્યારે G20 સમિટનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે આખી દુનિયાને જે શોકેસિંગ કરવાનું છે, જે ભારતને એક છબી બતાવવાની છે, એની અંદર આ સરકારી સેવાઓ દ્વારા લોકોને જોડીને, ખાસ કરીને યુવાનોને ખૂબ ટૂંક સમયમાં, અને એવા પણ યુવાનો જોડાયા કે જે લોકોની 4-5 પેઢીની અંદર સૌથી પહેલાં સરકારી નોકરીમાં જોડાયા હતા। એટલે ફક્ત એ લોકોને નોકરીમાં જોડવા નહીં, સરકારની અપેક્ષા પ્રમાણે, એના સંકલ્પો પ્રમાણે કેવી રીતે આગળ વધવું, કેવી રીતે એ લોકોની જાતને અપગ્રેડ કરવી, સાથે સાથે અભ્યાસ પણ ચાલુ રાખવો, કેવી રીતે પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવો, અને આ સેવાની અંદર જે કર્તવ્ય એમણે સમજાવ્યું કે સૌથી પહેલાં નાગરિક સાથે જોડાણ છે, એટલે નાગરિક જે કહે છે એ સાચું છે, અને એની પોતાની સેવાની અંદર તમે સૌ જોડાઈ રહ્યા છો, ત્યારે સેવા કાર્યની અંદર સરકારની અંદર જોડાયા પછી સરકારના વિચારો સાથે પ્રધાનમંત્રીએ ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું। सर्वप्रथम मैं माननीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने स्वागत संबोधन से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं कद्दावर नेता, हम सबके हृदय सम्राट, भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करना है। 2023 का वर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, और आज इस साल का ये पहला रोजगार मेला आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल कर हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं आपने सदा युवाओं की चिंता की है, युवा के व्यक्तित्व के निर्माण की चिंता की है, युवाओं के लिए किस प्रकार रोजगार, जीविका, आमदनी के नए नए विकल्प तलाशे जाए, इसकी चिंता की है। जहां एक और आपने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों को अपने आने वाले जीवन के लिए प्रेरित किया है, वहां दूसरी ओर लाल किले से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का आह्वान करके
देश को 80,000 से अधिक स्टार्टअप दिए हैं और हिंदुस्तान को दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे पर ला खड़ा किया है। इसी क्रम में आपने कुछ समय पहले देशवासियों से वादा किया था कि आप जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। आज एक बार फिर से प्रमाणित होता है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आपके आदेश अनुसार डीओपीडी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जहां आपके बटन दबाने से ही 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उसके ठीक एक महीने के उपरांत 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया, जो अपने में एक अपने किस्म का पहला एक ऐसा कदम था। आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करने वाले कुछ एक युवाओं से भी आपका वार्तालाप रहेगा, जिन्होंने इस माध्यम से अपनी सरकारी नौकरी में ग्रहण करने वाली नई जिम्मेवारी के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ये वो युवा हैं जो आज से 25 वर्ष आने वाले समय में भरपूर ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने आप को देश को समर्पित कर पाएंगे और आज से 25 साल बाद सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे। बहुत समय ना लेता हुआ मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हम बहुत जल्द फिर लौटेंगे। रोजगार मेला की अगली किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपसे आपके समय की दरख्वास्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी युवा सामर्थ्य और सशक्तिकरण का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सब तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता दे रही है भारत के प्रगति रथ को गति, और इस प्रगति रथ का अहम हिस्सा है देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, जिसका एक मजबूत प्रतिबिंब है रोजगार मेला। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 महीनों में विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर 10 लाख नियुक्तियां की जा रही हैं। ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ। मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ड ऑफ बिगिनर्स एंड एक्शन पे कोर्स किया है, जिससे मुझे रोजमर्रा के कामों में मदद मिली है, ऑफिस के कामों में। सब मुझे लगता है इस दौर में खुद को अपस्किल रहना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूंगा, जिसकी बदौलत में आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। पैदल आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के असली आवाज है। जम्मू कश्मीर का युवा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा आपने कहा, सेटल होना चाहते हैं। आप जैसे युवाओं की मेहनत से ही कश्मीर विकास की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचेगा। और आपको मेरी सलाह है कि अपने कौशल का विकास करते रहें, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल गई इसलिए कोई एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, तो शुरुआत। निरंतर अपने आप को ऊपर उठाना, नई नई चीजों को सीखना,
तो अवसर भी अनंत आते रहते हैं। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। आइए, नेक्स्ट कौन है? सर, आगे बढ़ते हुए मणिपुर निवासी वानी चोंग, जिनकी नियुक्ति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी में नर्सिंग ऑफिसर की भूमिका में हुई है। इस नियुक्ति से वानी बहुत खुश हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ केयर वर्कर बनना हमेशा से इनका ड्रीम रहा है। अब मैं चौंग से आग्रह करूंगी कि वे हमसे जुड़ें। बहना जी नमस्कार। बहना जी बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। आपको नौकरी पाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा होगा, और नहीं करना पड़ा तो अनुभव क्या है? Sir, my name is Ichong from Manipur, Churachandpur district. Right now, I'm working in Guwahati as nursing officer. I'm very grateful to you, sir, for giving me this opportunity to interact with you. Before coming here, I worked for 3 years in hospital which is in Delhi. To achieve my dream job, I still continue and learning while working in private job. I'm grateful to you, sir, for keeping your promise. नॉर्थ And ईस्ट में giving me नौकरी a- मिलने की खबर पर आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या रही? क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट होने के बाद जल्दी फिनिश हुआ और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिला उनकी वजह से, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द एक ही साल में मतलब ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी इतनी सारी जॉब्स देना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देना अपने यूथ को, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। Karmayogi Prarambh modules are conducting online courses. After completing the course of self-leadership, I gained the confidence how to lead a team. प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद। उन्होंने जो कर्मयोगी भारत मिशन चालू किया है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, और जो स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं व देश दोनों का भविष्य होगा उज्जवल। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के रूप में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी नवनियुक्त कर्मयोगी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुछ नवनियुक्त कर्मयोगी प्रारंभ का अपना अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री जी से साझा करेंगे। इन प्रतिभागियों के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि इनके परिवार में पहले कोई व्यक्ति सरकारी नियुक्ति में नहीं था, परंतु अब युवाओं के लिए बढ़ते अवसर और इन कर्मयोगियों की मेहनत के कारण यह संभव हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,